चलिए देखिए इसको फिर से बना दे रहा। चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो फिगर बना रहा है। रेस्ट में है, चार्ज है, दूसरा एक चार्ज है, मास है, ये चल रहा है, ये अपने पाथ से डिविएट हो जा रहा है। इसको बनाया गया था फिगर फर्स्ट और इसको बनाया गया था फिगर सेकंड। अब इसी को लिखने जा रहे हैं। देखिए फिगर फर्स्ट में क्या बनाए, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसके बगल में एक चार्ज है जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। टाइम के साथ इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहता है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगता। फिगर सेकंड में वही सब कुछ है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया। किधर वेलोसिटी दिया गया, उसी स्ट्रेट वायर के पैरेलल वेलोसिटी दिया गया। कहाँ रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अभी ये क्या हो रहा है, अपने पाथ से डिविएट कर जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ये जिस फोर्स के कारण डिविएट कर रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये जिस फील्ड के कारण लगता है फोर्स उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक अलग तरीके का फोर्स या फील्ड है जो सिर्फ वैसे चार्ज पार्टिकल पे लगता है, एक्ट करता है फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं। चेंज कर दे। इन फिगर 1, चलिए लिख सकते हैं। इन फिगर 1 we consider, in figure 1 we consider an infinite, in figure 1 we consider an infinite current carrying, in figure 1 we consider an infinite current carrying in figure we consider an infinite current carrying a straight wire, a straight wire and a charge particle, and a charge particle, and a charge particle kept in rest, and a charge particle kept in rest near the straight wire, near the straight wire, near the straight wire on the smooth surface, on the smooth surface, on the smooth, on the smooth surface, on the smooth surface. In figure first, we consider an infinite current carrying a straight wire and a charge particle kept in rest near the straight wire on the smooth surface. The charge particle is observed. The charge particle. The charge particle is observed.
The charge particle is observed with time. The charge particle observed with time. Then it is always in rest. The charge particle is observed with time. Then it is always in rest. So there is no any net force acting. So there is no any net force acting on this charge particle. On this charge particle. चलिए लिखिए. चेंज करें. In figure second, the charge particle is in motion. In figure second, the charge particle is in motion. Here charge particle observe with time. Here charge particle observe with time. Then it is observed. Then it is observed that here charge particle observed with time. Then it is observed that it deviates. It is observed that it deviates from its path. So there must be a net force. So there must be a net force acting on this charge particle. It is the magnetic force. It is the different types of force. It is the different type of force. It is the different types of force which acting only
those which acting only those charge particle. It is a different type of force which acting only those charge particles which are in motion, not in rest, चलिए लिखिए. Not in rest. आगे इसमें और लिखने जा रहे हैं. दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू ए फील्ड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं. वेक्टर कैपिटल बी से चेंज करें. दिस force is acting due to any field that is known as the magnetic field. That is known as the magnetic field. It is denoted by B. मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? B. कैपिटल बी से. चलिए आगे चल रहा है. Calculation of the magnetic force acting on the charge particle. चलिए अब देखा जाए. किसी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ many experiment. On the basis of many experiment, the force acting on the charge particle is given by
On the basis of many experiments, the force acting on the charged particle is given by. चलिए लिखिए. चलिए फोर्स का वैल्यू देखिए क्या होता है. F बराबर होता है Q V क्रॉस C. ये होता है फोर्स का वैल्यू. F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. Q क्या है? चार्ज. V क्या है? वेलोसिटी. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? Q V B आगे A क्रॉस B क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. यहाँ हो जाएगा V B साइन थीटा. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? Q V B साइन थीटा. तो ये हो गया. अब आइए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ B. मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट क्या डायमेंशन? B बराबर कितना? चलिए यहां से लिख देते हैं. F बाई Q V साइन थीटा है ना. क्या यूनिट होगा? न्यूटन पर कूलम. इसका मीटर पर सेकंड. ये होगा यूनिट. न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. और क्या नाम है यूनिट का? टेस्ला. और क्या यूनिट का नाम है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये इसका यूनिट है. किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. क्या क्या है? न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर. दूसरा टेस्ला. तीसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन क्या होता है? B बराबर, चलिए क्या है? F बाई Q V साइन थीटा. फोर्स का डायमेंशन M L T माइनस 2. चार्ज का डायमेंशन 80. वेलोसिटी का डायमेंशन, चलिए करिए क्या आ गया? M के पावर 1, L के पावर कैंसिल ना, तो 0 लिख सकते हैं या कैंसिल हटा ही देते हैं. T के पावर -1, ये तो कैंसिल हो गया. T कैंसिल. -2
a के पावर -1, यही ना? नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना? बोर्ड में बी का डायमेंशन बतला दीजिए, बताना पड़ेगा। यूनिट बतला दीजिए, यूनिट बतला दीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किधर लेते हैं। चलिए चेंज करें। चलो चेंज करें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो डायरेक्शन होता है। पहला डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होता है, एक होता है आउटवर्ड नॉर्मल, दूसरा इनवर्ड नॉर्मल। चलिए एरो देखे हैं, एरो देखे हैं। चलिए एरो को आगे से देखा जाए, किधर से देखा जाए? आगे से देखा जाए, कैसा दिखेगा? इसको इधर से देखा जाए, मान लीजिए एरो है, इधर से देखा जाए कैसा दिखेगा? क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है, पॉइंट दिखेगा। ऐसा क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा, दिखेगा। यही है। आपको क्या लग रहा है? ये बोर्ड के प्लेन से एरो किधर निकल रहा है? बाहर। इसी पॉइंट को बोलते हैं, यही डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब पेपर के प्लेन से बाहर। दूसरा क्या होता है? इनवर्ड
नॉर्मल एरो को आप किधर से देखिए, एरो को पीछे से देखना है, कैसा दिखेगा? इधर से देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं। ट्रेन दिखे हैं, ट्रेन देखे हैं, किधर से? पीछे से। छूट जाने के बाद ट्रेन या किसी को छोड़ने जाते हैं, ट्रेन चला जाता है, पीछे से देखें कभी? क्या दिखता है? क्रॉस दिखता है। कौन सा कलर से? चलिए तो नहीं, रेड ही रहता है जनरली, नहीं क्यों? इसलिए रहता है क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, वेवलेंथ बड़ा होता है। नहीं, रेड लाइट इसलिए हम लोग यूज करते हैं, नहीं सब व्हीकल में क्या होता है या और भी यूज होता है, क्योंकि बहुत दूर से ही दिख जाएगा। तो ऐसा दिखेगा नहीं, कैसा दिखेगा? ऐसा। ये जो एक एरो है ऐसा दिखेगा, दूसरा एरो ऐसा दिखेगा, दोनों मिलके वैसा दिखेगा। तो ये है आउटवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या हो गया? इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब लगेगा एरो यहाँ ऐसा दिया हुआ है, ये क्रॉस मतलब क्या? इस बोर्ड के प्लेन में एरो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, लेकिन किधर? अंदर की तरफ। चलिए लिख लीजिए।